نیوز بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر سے کریں گے کہ ٹرانسپورٹرز تاحال مخمصے کا شکار ہیں کہ ان کے مطالبات تسلیم کر کے نئے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد مؤخر کیا گیا ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ بہاولپور میں بسوں کی ہڑتال ختم ہو گئی، تاہم مزدا ایسوسی کوٹ اتر خانیوال میں ہڑتال مکمل ختم کر دی گئی۔ ملتان میں گزشتہ روز ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن دوبارہ ہڑتال کر دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان اور ہمیار خان میں بھی ہڑتال جاری رہی۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ٹرانسپورٹرز نے پیر کی رات مذاکرات کی کامیابی کا سن کر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن رات گئے سینئر منسٹر کی ٹویٹ کے بعد منگل کی صبح پھر ہڑتال کر دی اور بہاولپور بائی پاس پر ہڑتالی کیمپ میں ڈیرے لیے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہڑتالی کیمپ مطالبات تسلیم ہونے تک جاری رہے گا۔ بہاولپور میں بس مالکان نے تو ہڑتال ختم کر دی اور لاری اڈے کی رونق بحال ہو گئی، لیکن آل پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن کی پہیہ جام ہڑتال جاری رہی۔ لودھرا کی مزدا ایسوسی ایشن بھی احتجاج کے لیے بہاولپور پہنچ گئی اور ذخیرہ بائی پاس پر مزدا مالکان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بسز والوں نے ہمارے ساتھ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو اس کے بعد پوری گڈز ٹرانسپورٹ جو برادری تھی، جس میں کار کیریئر، 10 ویلر، 22 ویلر اور مزدا ایسوسی ایشن، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا الائنس بنایا ہے اور ہم نے حکومت کو بالکل یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم حکومت سے لڑ نہیں سکتے۔ ہمیار خان میں بھی پنجاب گڈز اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کی وجہ سے سامان کی ترسیل اور کاروباری معاملات شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال جاری رکھی۔ ضلع صدر گڈز ٹرانسپورٹ عبدالسلام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تاحال گڈز ٹرانسپورٹرز کی مطالبات نہیں مانے گئے۔ ادھر خانیوال میں گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہونے پر ویگن سٹینڈ پر مسافروں کو رش لگا رہا۔ سیکرٹری RTM محمد زاہد نے ویگن سٹینڈ اور بس اڈوں پر چیکنگ بھی کی۔ مزدا ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث سبزیوں کی رسد متاثر۔ انجمن آڑتیاں سبزی منڈی بہاولپور نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 2 روز تک رسد بحال نہ ہوئی تو سبزی اور پھلوں کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے۔ مزدا ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث سبزیوں کی رسد متاثر ہے۔ انجمن آڑتیان سبزی منڈی بہاولپور نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 2 روز تک رسد بحال نہ ہوئی تو سبزی اور پھلوں کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر جودیانہ کی رپورٹ میں۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کے باعث بہاولپور کی سبزی منڈی میں 90% رسد متاثر۔ انجمن آڑتیان کے مطابق اگلے 2 روز تک رسد بحال نہ ہوئی تو ریٹ ڈبل ہو جائیں گے۔ صدر انجمن آڑتیان کا کہنا ہے کہ سبزیاں مہنگی ہونے سے منڈی میں کاروبار متاثر اور شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 90% مال کی کمی ہو چکی ہے۔ جو مال بچے پڑے تھے وہ بک آ گئے ہیں۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کریں۔ یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو کہاں سے مال؟ ادھر بہاولپور کی لوکل تو کاشت ابھی کسی چیز کی ہے نہیں۔ آلو کو دے رہا ہے، گاجر کو دے رہا ہے، ابھی وہ زیر زمین ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے ان کے ساتھ کوئی نرمی کریں، کوئی معاملات طے کریں، چلان کم کریں۔ منڈی میں ابھی تک مقامی سطح پر سٹور مال ہی فروخت کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مقامی سبزیاں ابھی تک تیار نہیں ہوئیں۔ بہاولپور کی طلب ابھی بین الاضلاعی سبزیوں پر منحصر ہے۔ آج کل زیادہ تر سبزیوں کی سپلائی سندھ اور لودھرا سے آ رہی ہے، جو مکمل بند ہے۔ 1-2 دن بعد ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہو جائے گا، اور پھر چیز جب اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو یہ ساری ہے تو سواریوں پر آتی ہے نا ہر چیز، تو سواریاں بند ہیں، تو لہٰذا یہ مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی بارگیننگ کر کے جیسے ہے اوپر نیچے کریں تاکہ لوگوں کے معاملات صحیح چلتے رہیں۔ آل پاکستان مزدا اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال سے مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پہیہ جام ہڑتال جلد ختم نہ ہوئی تو سبزیوں کے ساتھ آٹے اور پیٹرولیم مصنوعات کی شارٹیج بھی ہو سکتی ہے۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جودیانہ، روہی، بہاولپور۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال نے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو ایک بار پھر آسمان پر پہنچا دیا۔ سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹس میں بھی فرق مزید بڑھ گیا ہے۔ سبزیاں، پھل، چکن اور انڈوں سمیت ہر چیز مہنگی ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل سلطان۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق برقرار۔ گاجر اور کھیرا ایک ہی دن میں 100 روپے سے بڑھ کر 120 روپے فی کلو ہو گئے۔
सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी 5 से 10 रुपए तक इजाफा हो गया। सरकारी निर्खों के मुताबिक सब्ज मिर्च 90, प्याज 78, आलू 56 और टमाटर 46 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में सब्ज मिर्च और प्याज 120, आलू और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में मटर सरकारी निर्ख में 140 की बजाय 150 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि साग, मूली और मेथी 50 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। अदरक और लहसुन 400, लीमू 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में अंगूर 800, अनार 600, सेब 400 और अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में अंगूर 630, अनार 450 और सेब 310 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में माल्टा 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। परचून में ब्रायलर गोश्त 450 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 344 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को फौरी कंट्रोल करे। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन जारी। बहावलपुर में 13 रोज में 1.5 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने वसूल किए गए। उधर बहावलपुर में सेंटर्स का लिंक डाउन होने से शहरियों को लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात, जबकि डेरा गाजी खान में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए शिकायत सेल कायम कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 13 रोज में 1.5 करोड़ से जायद जुर्माने वसूल, मजमूई तौर पर 7019 चालान किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जावेद नूर कहते हैं 27 नवंबर से अब तक 8432 नए लाइसेंस बना चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस अवाम की खिदमत कर रही है। उधर बहावलपुर में लाइसेंस के हुसूल के लिए 4 सेंटर्स कायम, मगर चारों सेंटर्स पर ही लिंक डाउन। शहरियों को लाइसेंस के हुसूल में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं लिंक डाउन का बहाना करके सिफारिश पर काम किया जा रहा है। पूरा दिन लाइसेंस बनवाने में गुजर जाता है। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शिकायत सेल कायम। शहरी लाइसेंस और चालान से मुतल्लिक शिकायत आरटीओ इरफान अशरफ को बजरिया व्हाट्सएप दर्ज करवा सकेंगे। डीटीओ आमिर रफीक का कहना है कि शिकायत सेल के फोकल पर्सन आरटीओ इरफान अशरफ हैं। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में पुलिस के मुश्तरका स्क्वाड का एक हफ्ते के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ा क्रैकडाउन, मजमूई तौर पर 1200 मुकदमात का इंदराज और 1150 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कुल 759 व्हीकल्स कब्जा में ली और लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए। कोटद्दू के जनरल बस स्टैंड में सहूलियत का फुकदान। मरकजी बस अड्डे पर जगह जगह कीचड़ और गंदगी की भरमार। बस अड्डे में गड्ढे बनने से मुसाफिरों का गुजरना मुहाल हो गया। तफसीलात शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू का जनरल बस स्टैंड मिसाइल का गढ़ बन गया। बस अड्डे में मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान, जगह जगह कीचड़ और गंदगी की भरमार है, जबकि ताफून के बायस मुसाफिरों का बैठना भी नामुमकिन हो चुका है। जनरल बस स्टैंड में टफटेल न होने से जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश होने लगी। मच्छरों और ताफून की वजह से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट ऑफिस का अमला मुश्किलात से दो चार है। भाई ये काफी अरसा हो गया है। परसों भी एसी साहब को रिक्वेस्ट की है, भाई यहाँ ना कोई मुसाफिर चल सकता है ना फिर सकता है, बहुत मसला है। अगर बारिश आती है तो बिल्कुल यहाँ पानी की जगह बिल्कुल बंदा पैदल चल भी नहीं सकता। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी को रोजाना पर्ची फीस देते हैं, लेकिन इनकी तरफ से फराम सहूलियात न होने के बराबर है। ट्रांसपोर्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से बस अड्डों में टफ टाइल लगवाने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। लोधरा में रोही की खबर पर फौरी एक्शन। जिला इंतजामिया ने म्यूनसिपल स्टाफ को बाजार से मलबा हटाने और फुटपाथ की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। उधर हरुनाबाद का 66 फीट चौड़ा केनार रोड तजावुजात के बायस उखड़कर 10 फीट रह गया। दूसरी तरफ अहमदपुर लम्हा में दुकानदार सफाई टैक्स के भारी बिल्स पर सरापा एहतजाज है। लोधरा के अकलौते बाजार में ब्यूटिफिकेशन का काम 1.5 माह से तातुल का शिकार। ठेकेदार सड़क उधेड़ कर गायब, दुकानदार रेडी बान और शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि बाजार को खूबसूरत बनाने के नाम पर इन्हें बीमारियों का शिकार बनाया जा रहा है। दुकानदारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अधूरा छोड़ा गया काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। ब्यूटिफिकेशन के काम में तातुल की खबर रोही पर नशर हुई तो लोधरा इंतजामिया फौरी मुतहरिक हुई और एडिशनल
डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी मेन बाजार की अबतर हालत का जायजा लेने पहुंच गए। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मलक असगर अराइन भी इनके हमरा थे। लियाकत अली गिलानी ने बाजार में जारी ब्यूटिफिकेशन प्लान का जायजा लिया। उन्होंने टूटे फुटपाथ का मलबा बाजार में पड़ा होने पर इजहार बरहमी किया और म्यूनिसिपल स्टाफ को अगले 12 घंटे में बाजार से मलबा हटाने जबकि 48 घंटे में फुटपाथ की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म किया। इधर हारूनाबाद का 66 फुट चौड़ा केनाल रोड तजावुजात के बायस सुकड़कर 10 फुट रह गया। सड़क तंग होने के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क की खस्ता हाली ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। केनाल रोड पर नादरा ऑफिस और गर्ल्स डिग्री कॉलेज समेत मुतअद्दिद निजी तालीमी अदारे मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि तजावुजात और खस्ता हाली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ अहमदपुर लम्मा में दुकानदार सफाई टैक्स के भारी बिल्स पर सरापा एहतजाज हैं। दुकानदारों का कहना है कि 3 माह पहले सुथरा पंजाब इंतजामिया सादकाबाद के साथ ये मुआहिदा तय पाया था कि हर दुकानदार माहाना 300 रुपए सफाई टैक्स अदा करेगा, लेकिन अब मुआहिदे के बरअक्स भारी बिल्स भेज दिए गए हैं। टैक्स अदा करने के बावजूद अमला सफाई करने नहीं आता। दुकानदारों ने जायद सफाई टैक्स को खत्म करने का मुतालबा किया। मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की शाहीन मार्केट में दुकानों की नीलामी का मामला ताजरों और सीओ कॉरपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गुज़श्ता रोज होने वाली दुकानों की नीलामी कैंसिल करने की यकीन दहानी कराई। अंजुमन ताजरान ने आज 40 दुकानों की नीलामी में हिस्सा लिया। तफसीलात गोहर रहमान शेख की इस रिपोर्ट में। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में शाहीन मार्केट की 345 दुकानों की नीलामी जारी। आज 40 दुकानों की नीलामी की गई, जबकि गुज़श्ता रोज 50 दुकानों की बोली हुई थी, लेकिन अंजुमन ताजरान ने गुज़श्ता रोज बतौर एहतजाज नीलामी का बाइकआउट किया था। ताहम आज सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुज़ाकरात के बाद सीओ कॉरपोरेशन ने अंजुमन ताजरान को गुज़श्ता रोज की नीलामी कैंसिल करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर ताजर बरादरी ने आज होने वाले एहतजाज भी मौखर कर दिया है। ताजरों का कहना है कि कॉरपोरेशन की यकीन दहानी के बाद वो नीलामी के अमल में भरपूर हिस्सा लेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली नीलामी का अमल गुज़श्ता 15 साल से इल्तिवा का शिकार था। नए कॉन्ट्रैक्ट होने पर कॉरपोरेशन की आमदन में इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर शहर शहर रैलियों तकरीबात का इनेकाद। शहरियों, सरकारी मुलाजमीन, ताजरों और सिविल सोसाइटी ने करप्शन के खात्मा के आज़म का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर नैब के जेरे इख्तिमाम रैली शुरका ने जिला काउंसिल से कचहरी चौक तक मार्च किया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ने की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मुआशरे को करप्शन से पाक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उधर रहीम यार खान में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शफाफ पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान ने की। रैली में तमाम महकमों के अफसरान, अमला और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। वॉक के शुरका ने करप्शन के खात्मे, दयानतदारी के फरोग और शफाफ निजाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि बदउनवानी नहीं, शफाफियत ही कौम का सही रास्ता है। डेरा गाजी खान में भी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौका पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक मार्च में सरकारी अफसरान, तलबा और तालिबात और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। वॉक की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर ने की। दूसरी जानिब विहाड़ी में महकमा एंटी करप्शन के जेरे इख्तिमाम एंटी करप्शन डे के हवाले से रैली निकाली गई। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गोराया और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राव फैसल रहमान ने की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि करप्शन एक नासूर है जो इदारों को कमजोर और मुआशरे को गैर महफूज बनाता है। मुल्तान में सानिया ज़हरा कत्ल केस में मुल्ज़िमान को सजा दिलवाने वाले प्रोसिक्यूटर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि यह कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज रसूल चीमा ने केस में प्रोसिक्यूशन के किरदार को अहम करार दिया। मज़ीद जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सानिया ज़हरा कत्ल केस के प्रोसिक्यूटर्स के एजाज़ में तकरीब पजीराई का इनेकाद। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की
तकरीब में खसूसी शिरकत। हाई कोर्ट के एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल वदूद और SSP ऑपरेशंस मुल्तान समेत दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह का तकरीब से खिताब में कहना था कि आज हम सानिया ज़ारा केस में सुर्खरू हुए हैं, वो जहां भी हों इस केस पर पहरा जरूर रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन क्राइम फ्री पंजाब है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस विजन की तकमील के लिए पूरी कुव्वत से काम कर रहा है। फराद अली शाह ने कहा कि इन्हें मिलने वाला तमगा इम्तियाज पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत का समर है। अगर हमारी वर्दी CM पंजाब का विजन इस वक्त ये है कि पंजाब को हमने क्राइम फ्री करना है, तो क्राइम फ्री करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी समझते हुए परफॉर्म करना है। ये तमगा इम्तियाज मुझे नहीं मिला, तमगा इम्तियाज मिला टीम प्रोसिक्यूशन को। और जब भी कोई टीम जीतती है, कप्तान को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कप्तान को मौका मिलता है वो अवार्ड हासिल करने का, तो ये आपका अवार्ड है, आपकी मेहनत की वजह से मिला। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज रसूल चीमा ने कहा कि मुल्तान में प्रोसिक्यूशन के अफसरान ने पेशावराना दयानत, मेहनत और जज्बे के साथ केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इस टीम की काविश ने साबित किया कि सच्चाई और कानून की बालादस्ती के लिए ईमानदार अफसरान का किरदार बुनियादी हैसियत रख। सानिया ज़ारा के वालिद सैयद असद अब्बास शाह का कहना था कि इस केस में ना रिश्वत दी गई, ना सिफारिश दरकार थी। प्रोसिक्यूशन ने केस को अंजाम तक पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया। कि अब किसी की बेटी को ससुराल में खुदकशी का रंग देकर, चूल्हा फटने का रंग देकर और कोई भी गैरत के नाम पर, जनूबी पंजाब सबसे बड़ा इधर डोमेस्टिक वायलेंस है, तो मैं आपकी प्रोसिक्यूशन का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तकरीब के आखिर में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सानिया ज़ारा केस में खिदमात अंजाम देने वाले प्रोसिक्यूटर्स नाहिद कमल, मियां बिलाल, आरिफ बलोच समेत दीगर प्रोसिक्यूटर्स को सर्टिफिकेट और एजाजी शील्ड से नवाजा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में इंतजामी अफसरान अवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। कमिश्नर, RPOs और डेप्टी कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ हस्पतालों, दफातर और तालीमी इदारों के दौरे किए। कमिश्नर DG खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी का डिप्टी कमिश्नर लिया असफ अली डोगर और CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज के हमरा DHQ अस्पताल लिया का तफसीली दौरा, इमरजेंसी डायलिसिस यूनिट और ट्रामा सेंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सफाई का मयार बेहतर बनाने की हदायत की। इधर मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लैंडफुल साइट हबीबा सियाल में वेस्ट कलेक्शन और वजन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने शहर के मरकजी मकामात पर डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर्स लगाने की हदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर जप्पा का गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर मॉडल सेकेंडरी हाई स्कूल, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी और मॉडल बाजार का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बखर एहसान अली जमाली ने तहसील क्लोर कोर्ट का दौरा किया और ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने THQ अस्पताल में मरीजों को फराहम करदा तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ चार्ज संभालने के बाद जलील अस्पताल पहुंच गए और इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। वेलकम बैक। भावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में तीर अंदाजी की एक रोजा चैंपियनशिप का इनेका टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम सजाया गया है। चैंपियनशिप के दौरान 10 से ज्यादा सीनियर खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोधियाना की इस रिपोर्ट में। जानब और शिकार से इब्तिदा पाने वाला हुनर अब भावलपुर के खेल के मैदानों में पहुंच गया। ड्रिंक स्टेडियम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए तमाम एक रोजा आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में 10 से ज्यादा सीनियर तीरंदाजों ने अपने जौहर दिखाए। इस मौका पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद का कहना था कि आर्चरी चैंपियनशिप का मकसद भावलपुर में इस खेल को फरोग देना है। आज हमने सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप यहाँ रखी है। जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं भावलपुर के, तो उनको मौका दिया है कि वो संडे इंजॉय करें। तो इसी सिलसिले में आज सारे सीनियर्स आर्चरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ किस्म के कमान, रिकर्व, कंपाउंड और ट्रेडिशनल लॉन्ग बाउ का इस्तेमाल करते हुए खूब निशानेबाजी की। चैंपियनशिप में खवातीन खिलाड़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। खवातीन तीरंदाजों का कहना था कि तीरंदाजी इस्लामी खेल है, इस पर तवज्जो, सब्र और जिस्मानी फिटनेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है जिसमें हम सब ने 3-3 सेट शूट करना है। आर्चरी को इस्लामिक गेम भी कहा जाता है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनमें फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं और गेम्स जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लाइक एनकरेज आवर फिटनेस एंड बी इन परफेक्ट हेल्थ।
खिलाड़ियों ने बहावलपुर में आर्चरी चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस इकदाम पे बहावलपुर से नेशनल और इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी सामने आएंगे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब आमिर हमीद साहब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया है और हम खेल रहे हैं। तो इन्होंने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया था उसी को हम अप्रोच करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। अपने तर्ज के अनोखे इवेंट में नौजवान खिलाड़ियों ने भी सीनियर खिलाड़ियों से मुख्तलिफ हुनर सीखे। खिलाड़ियों ने तीरंदाजी को ग्रास रूट लेवल तक प्रमोट करने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जुधियाना आरोही, बहावलपुर। नाज़रीन, सरगोदा की मशहूर सौगात कीनू मार्केट में आ गया। महंगाई के बावजूद शहरी मौसम के फल का लुत्फ उठाने में मशगूल। ताहम कीनू की कीमत ज्यादा होने के बाद शहरी मोहताज खरीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं शेख उस्मान की ये रिपोर्ट। सरगोदा की पहचान कीनू मार्केट में आते ही खरीदारों का रश लग गया। शहर भर से लोग अपनी जरूरत के मुताबिक माल्टा, कीनू और फ्रूटर खरीदने मार्केट पहुँच रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि इस साल कीमतें गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा हैं, जिसके बायस इन्हें खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान, मैं किन्नू लेने के लिए आया हूँ मार्केट में, अपने लिए, बच्चों के लिए। सरगोदा के मशहूर किन्नू हैं, तो वो रिश्तेदार अब कॉल करते हैं कि किन्नू हमारी तरफ भेजो, तो मार्केट में आया हूँ किन्नू खरीदने के लिए। दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं मार्केट तक किन्नू महदूद मिकदार में पहुंच रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा होना नागजीर है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, आवाम घरों में आपने दाल रोटी पर मजबूर है, माल्टे कौन खाएगा। ऊपर से ये हड़तालें हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, बाहर से कोई आएगा तो खरीदारी करेगा। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है। खरीदारों ने अपील की है कि किन्नू की कीमत कम की जाए ताकि हर तबका मौसम की इस सौगात से फायदा उठा सके। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा।